ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی, کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ عمرہ مبارک. ابھی آپ بھی عمرہ کر کے آئی, ڈاکٹر میراحیل ماشاء سے عمرہ کر کے آئی ہیں, اور ہمارے ساتھ غالب آغا بھی موجود ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو صبح صبح ہم بڑے رینڈملی ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی 2 ڈبیاں نمک اور کالی مرچ کی, ان کے فوائد کیا کچھ ہیں؟ ہم ان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کیونکہ سستی مل بھی جاتی ہے نا, لیکن لائٹ نہیں لیتے اس لیے کہ اس کے بغیر تو کھانا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے اہم سیریس لیتے ہیں. ہاں بہت سیریس لیتے ہیں, بس زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے تاکہ بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے. ہاں پتہ چلے آپ ہی سیریس ہو جائیں آگے. ہاں لیکن یہ کہ آپ کے باڈی کے دردوں کے لیے, آپ کے سویلنگ کو کم کرنے کے لیے, اسی کے استعمال کا طریقہ کار ہے. زیادہ کھا رہے ہیں تو سویلنگ بڑھ جائے گی, اگر اس کو استعمال ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور اس کا بات لے رہے ہیں تو سویلنگ کم ہو جائے گی. تو یہ دردوں کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کی نیند کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. جن کو بہت زیادہ نیند آتی ہے اگر وہ استعمال کریں, لیکن ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, تو فائدے ہی فائدے ہیں. اور اگر آپ نے زیادتی کر دی, چاہے وہ نمک ہے یا کالی مرچ ہے, تو دونوں کے بھی نقصانات بھی اسی طرح سے. اچھا میں نا پچھلے دنوں کسی سے بات کری تھی اور انہوں نے بتایا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ باڈی کی کٹس کو بڑھانے کے لیے جب آپ اسپیشلی جب ڈائٹ کر رہے تھے تو 2 دن آپ نمک اور پانی کی ڈائٹ کرتے ہیں. اب میں نے تو یہ سنا تھا کہ نمک نہیں لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی باڈی کی کٹس ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے, لیکن اب یہ ڈائٹ بھی آ گئی ہے. دیکھیے نمک چٹکی پانی میں ڈال کے اگر آپ صبح پئیں گے نا, آپ کی بڑی آنت میں جو آپ کے گڈ بیکٹیریا ہے نا اس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے. صحیح ہے, واٹر تو ریٹین کرتا ہے, لیکن اگر چٹکی کریں گے تو وہ اس میں جو انزائمز ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑے آنت میں جو اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں. ہر چیز کی زیادتی خراب ہے. اسی طرح کالی مرچ بھی اگر پریگننسی میں زیادہ لی جائے تو مس کیریجز ہونے کے چانسز ہیں. اوکے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم اگر ابھی اوبیسٹی کے اور ان سب کے آپ کو نسخے بتائیں گے تو وہ پریگننسی میں نہیں کرنا, یا جو فیملی وے میں جانا چاہتی ہیں وہ بھی 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ سے زیادہ نہیں, کیونکہ کالی مرچ بہترین ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے آپ کی باڈی کی. تو وہ جب بیبی کو بھی شاید وہ فورن باڈی ہی سمجھتا ہے. صحیح ہے, اس چیز کو یاد رکھیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, نمک کالا نمک لیتے تھے, چٹکی لیمبو پانی پیتے تھے گرم. جی جی جی. اب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اس کی برائی شروع ہو گئی, اس کو سائڈ پہ کر دیا, دوسری چیزیں ان ہو گئی, مگر اب بیک ٹو دا روٹس, اب سب وہی چیزیں دوبارہ ریویل کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کے گٹ میں گڈ بیکٹیریا کی گروتھ کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ کے گڈ بیکٹیریا بڑھتے ہیں تو آپ ڈیٹاکس ہوتی ہے باڈی, جب ڈیٹاکس ہوتی ہے تو موٹاپا بھی ختم ہوتا ہے. اس لیے واٹر ریٹینشن بھی ختم ہوتی ہے چٹکی نمک سے. بابر بلقیس ایک بات ریپیٹ کر رہی ہے, اگر غور کریں تو چٹکی نمک, اس لیے کہ وہ کہیں اچھا باڈی کا ویٹ کم ہو رہا ہے, ڈیٹاکس ہے چمچہ بھر کے ڈال دیا تو پھر واٹر ریٹینشن بڑھ جائے گی, تو وہ سویلنگ ہو جائے گی, باڈی بلوٹ کرے گی. تو وہ بار بار میرے خیال میں 6 دفعہ کہہ چکے چٹکی سے زیادہ نہیں, چٹکی کا خاص تاکہ لوگ بالکل ایک چٹکی نمک کی قیمت تم کیا جانو, بس اس سے ذرا بڑھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ بھی میں کیسے اس کو ایڈ کرنا چاہیے گی کہ یہ جو نمک اور کالی مرچ ہے جو روز صبح ہمارے ناشتوں کی ٹیبل کی زینت ہوتی ہے, ہمارے کچن میں اسپیسیفکلی سب سے جو ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہ اسی پہ نمک پہ پڑتا ہے, کالی مرچ پہ پڑتا ہے, اس کے فوائد کتنے ہیں اور ان کی زیادتی کتنی بری ہے؟ کسی بھی چیز کی اگر زیادتی ہو تو وہ یقیناً آپ کی صحت پہ جہاں اچھے افیکٹس ڈال رہی ہوتی ہے اس کی زیادتی اس پہ بہت زیادہ برے امپیکٹس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ نمک ہو, کالی مرچ ہو, ادرک ہو یا XYZ. ہم روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی اجزاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان تمام کی اگر میں بات کروں, بات ہے کالی مرچ کی, تو کالی مرچ اینشنٹ ایجپٹ میں کنگ آف اسپائسز کہلائی جاتی تھی اور کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی کالی مرچ, اور یہ اتنی زیادہ فائدہ مند تھی کہ اس کو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا اینشنٹ ایجپٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت کا اندازہ تھوڑا بہت سے لگایا جا سکتا ہے. بالکل ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے کھانوں میں ڈل رہی ہیں جس کو ہم اسپائسز یا مسالوں کا نام دیتے ہیں, بیسکلی وہ ہماری اصلاح صحیح کرنے کے لیے, معدے کے نظام کو یا ڈفرینٹ بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین دوا کا کام کر رہی ہوتی ہیں.
अच्छा, मैं नमक की बात करूं, मैं काली मिर्च की बात करूं, मैं गरम मसाले के किसी भी इंग्रेडिएंट की बात करूं, मैं हल्दी की बात करूं, मैं जीरे की बात करूं, या खाने में जो इसको हम नॉर्मली बस कहते हैं ना टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, बेसिकली ये हमारे खानों की जान तो हैं, बट उसके साथ साथ हमारी जान को बचाने के लिए डिफरेंट बीमारियों से एक बेहतरीन दवा का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा एंगल है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस एंगल के अंदर हमने कितनी ज्यादती कर दी होगी बहुत सारी चीजों को बढ़ा के भी, कि अगर ये मसाला जात बेसिकली जो हम खाने में अपने ऐड करते थे वो हमारी सेहत के लिए थे, बिल्कुल, तो उनकी ज्यादती खराब भी एक ज्यादती। और दूसरी चीज, हम आजकल पिसे हुए मसाले ले आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें कभी कभी मिलावट का खदशा रहता है, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग बहुत दयानतदार लोग हैं। खदशा आपने क्यों कहा? यकीनन। तो मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि साबुत चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, जैसे कि अदरक का पाउडर बहुत सारे लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी सोंठ आती है, लहसुन का पाउडर होता है तो लहसुन ड्राइड मिल रहा होता है आजकल, या हल्दी की बात करूँ तो हल्दी भी अदरक की नुमा में सब्जी वाले के पास अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें खुद घर में लाएं, उसको साफ़ करें, उसको भूनें और उसके बाद उसको पीस के रखें। आपका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा खाने का, बट इसके साथ साथ आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा, नमक की अगर बात करूं, WHO ये कहता है कि एक चाय का चमचा मैक्सिमम नमक आप कंज्यूम कर सकते हैं एक बंदा जो नॉर्मल है, जो जिसको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है। बट 100% नमक का बंद कर देना ये आपके बहुत सारे इश्यूज को डेवलप कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ा इशू पाँव में क्रैम्पिंग की सूरत में आ रहा होता है, फटीग की सूरत में आ रहा होता है, थकावट की सूरत में आ रहा होता है। और लोग ना पिंक सॉल्ट पानी में डाल के पिए इसलिए जब लोग कीटो वगैरह कर रहे थे तब बड़ा मसला होता है इस चीज का। हाँ। तो नमक 100% बंद करना कभी भी फायदेमंद नहीं होता। आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने सोडियम का जो ज़रूरत है वो यकीनन मौजूद रहती है, चाहे वो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तब भी। सही। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को WHO ये कहता है कि 500 मिलीग्राम, जिसको हम अगर बात करें बिल्किस आपा की ज़बान में ही तो वो बेस्ट उन्होंने बोला कि एक चुटकी हाँ, एक चुटकी नमक ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी पूरे दिन में 24 घंटे में कंज्यूम करना उनके लिए भी ज़रूरी है, वरना उनका जो है वो सोडियम लेवल कम हो जाएगा, जो कि गुर्दे की खराबी का बाइस भी बन सकता है। और बहुत से लोगों की जो बॉडी में पानी भर गया हुआ है तो उनके लिए फिर नमक का बताएं, क्या वो भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ मिकदार में कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। हाँ। और अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे आपने भी कहा कि पानी की टिकोर, मैं हमेशा मशवरा देता हूँ टेसू के फूल और लाहौरी नमक, इसको पानी में पकाएं, तौलिया उसमें भिगोएं, और अगर पाँव में या कहीं पे भी सूजन हो रही है वो तौलिया सिर्फ 10 मिनट के लिए रख लें, भिगोने के बाद रख लें। जो पानी उसमें से रिश्ता रहेगा वो आपकी सूजन को भी बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, और जो मतलब बहुत ज़्यादा फुलावट हो रही है, सूजन हो रही है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही जी। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैं चाहूँगी गालिब कि आप हमारे किचन में भी चले जाएँ ताकि फिर उसके बाद हम शुरू करें अपनी वो तमाम तर चीज़ें जो रेसिपीज़ हमने आज रखी हुई आप लोगों के लिए। और वो बात जो कि डॉक्टर बिल्किस ने कही और फिर डॉक्टर उम्मे ने भी उस पर एम्फसाइज किया कि वो जो चुटकी का वर्ड इस्तेमाल किया ना, उतनी चुटकी इस्तेमाल नहीं चाहिए, वरना मैंने आपको आके चुटकी काट लेनी। और कुछ लोग ऊपर से नमक डालते हैं, वो जहर है जी। मैंने अक्सर लोगों को देखा नमक खाने में कम है, लो जी ऊपर से नमक डाल दिया। सैलेड में नमक डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी सब्जियां होती है ना उसमें कुदरत ने खुद ही उसमें रखा होता है, तो जो सलाद में भी जो नमक ऊपर से डालते हैं वो ना डालें तो बेहतर। मतलब अल्लाह मियाँ को आपसे ज़्यादा है ना सूझबूझ, ऑफ कोर्स वो जानता है ज़्यादा बेहतर कि मुझे किसमें कहाँ क्या चीज़ डालनी है। जी गालिब, पहली जो चीज़ होगी वो क्या? सबसे पहले डिटॉक्स, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हज़म का निज़ाम बेहतर होना ज़रूरी है, और इन दोनों चीज़ों के लिए काली मिर्च और काला नमक एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। तो हम एक डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं जो कि हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा, भूख को, जिन लोगों को भूख कम लगती है उनको बेहतर करेगा, और इसके साथ साथ जिनको ज़्यादा लगती है भूख वो थोड़ा सा डिफरेंट, इससे दूर हैं और उसमें जो है वो पर उनका भी आप बताएंगे। बिल्कुल। हाँ। और गैस्ट्रिक प्रेशर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, बर्ब्स आते हैं, या ऐसा लगता है कि बदहजमी सी हो रही है, खाना जल्दी हजम नहीं हो रहा और ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, जिसको हम गर्ड के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 20 से 25 पत्तियाँ पुदीने की, फ्रेश पुदीना मैंने लिया। इसमें मैं ऐड करूँगा 1 लेमन, और लेमन को हम 4 हिस्सों में इसको हम पार्ट कर लेंगे इसका, और इसके साथ इस पानी में ऐड कर देंगे। हमने इसमें डाले उसके 1 लीटर पानी दिया, ठीक है, उसमें मिंट मतलब पुदीने के पत्ते हमने तकरीबन 25 से 30 के करीब डाले, और इसके साथ लेमन के 4 हिस्से करके मैंने इसमें 2 लेमन ऐड कर दिए। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो खीरा, जो कि हम
छिलके समेत लेंगे, अच्छी तरह वॉश करेंगे और एक दरमियाने साइज़ का खीरा भी इसमें हम ऐड कर देंगे, 4-6 टुकड़े कर, ठीक है, इस तरह। और इसके साथ साथ लास्ट में जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ वो है सौंफ। हज़म बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है सौंफ, और ये गैस्ट्रिक प्रेशर को भी बेहतर करती है, हज़म के निज़ाम को बेहतर करती है, भूख को बेहतर करती है, और इसके साथ साथ आपके ओवरऑल जो गट हेल्थ होती है या स्टमक हेल्थ होती है उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करती है। ये मैं इसमें ले रहा हूँ 2 चाय के चमचे। ठीक है। अच्छा, ये डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 1 पिंच के करीब, 1 चुटकी के करीब काला नमक भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके रख लेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाला वाटर आप कंज्यूम करें पूरे दिन में, और इससे आपको ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे जिससे आप डिटॉक्स भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को। अच्छा, डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स सिर्फ वज़न कम करने की एक चीज़ नहीं है। डिटॉक्स से आपकी स्किन अच्छी होती है, डिटॉक्स वाटर लेने से आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी आंखें अच्छी होती हैं, आपका स्टमक अच्छा होता है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये पानी हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा है होता है, और ये बेहतरीन है। अच्छा, बात हो रही थी नमक की अभी। अच्छा, इससे पहले कि हम नमक की मजीद बात करें, मैं देख रही हूँ कि सामने डॉक्टर बतूल भी बैठी हुई हैं, तो ज़रा मैं डॉक्टर बतूल से भी ज़रा रिक्वेस्ट करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए हैं आप? हमारी आंखों के सामने ताकि हमें मज़ा भी आए आपको देख के, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी मुफीद हो सकें बिल्कुल आपके नॉलेज से जी। अच्छा, पहले कॉलर में ले लूँ ज़रा। हमारे साथ आलिया मौजूद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आलिया आप ठीक हैं? मदिया माशाल्लाह तीसरी मरतबा मेरी आपके साथ बात हो रही है। तो मेरी आज खुशकिस्मती थी। डॉक्टर बलकीस भी हैं और डॉक्टर बतूल भी हैं, ये सारे डॉक्टर मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैं इनसे मैंने कहा फायदा ले लूं आपकी वजह से। तो मुझे हाइपोथायराइड है, तकरीबन मुझे 18 साल से। तो मेरे बेटे की पैदाइश के फौरन बाद मुझे ये हुआ था। उसके बाद मेरी एक बेटी हुई, और उसके कुछ अर्सा बाद जो मेरे जो पीरियड्स वो बंद हो गए, और फिर मुझे कैंसर हो गया। अब मैं उससे भी फारिग हूँ, कैंसर फ्री हो गई हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरा वेट किसी सूरत कम नहीं हो रहा। मैंने होम्योपैथिक भी इलाज करवाया था, उससे तो और भी ज्यादा कम खराब हो गया। मेरे पूरे जिस्म पे सेल हो गया मेरा। और 1 साल मुझे, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे कहते थे, हम समझते थे पर इसका वक्त आ गया, पता नहीं इतनी बुरी मेरी हालत हो गई। और जब उस बंदे ने मेरे साथ ठीक ठाक पैसा उसने बटोरा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा एलोपैथिक की तरफ चली गई। थेराक्सन खाती हूँ मैं सुबह, लेकिन ये है कि थेराक्सन से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बेहतर आती हैं, लेकिन मेरा वेट जो है वो टच से मस नहीं होता। ये मुझे पूछना था कि इसकी क्या वजह है। कुछ पूछना था? कोई हालांकि खाने भी मैं बहुत चूजी हूँ, कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में जो है मैं 1 रोटी सुबह को सादा, 1 शाम को, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मैं खाती हूँ। चाय 2 से 3 मरतबा पीती हूँ और कुछ नहीं है। आपका ब्लड काउंट सही है? एनेमिक तो नहीं आप? एनेमिक तो नहीं आप? खून की कमी तो नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, स्किन ड्राई तो नहीं रहती? और मखसूस आयाम तो आपके बंद हो चुके हैं, जैसे आपकी स्किन सही है, स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही है? वो अभी मुझे 3 माह पहले मेरी कीमो कंप्लीट हुई है। अच्छा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा ठीक है। मैं सबसे पहले तो आपकी 3 माह पहले कीमो कंप्लीट हुई, आई एम श्योर अब आप कैंसर फ्री हो गई हैं। हाँ जी, कैंसर फ्री आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मोटापा वगैरह ये तो आनी जानी चीज है, लेकिन सबसे पहले आपको मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी और लंबी जिंदगी दी, अपनी बच्चियों की खुशी आप देखें। जी हाँ जी। अच्छा देखिए, थायरॉक्सिन का ऐसा है कि ना आप उसका एक टाइम बना लें। कुछ लोग ऐसे करते कि ना कभी किसी वक्त ले लेते, कभी किसी वक्त ले लेते, ये नहीं 24/7 में एक वक्त बना लें। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ले सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन जब मैंने अपने पेशेंट को ये सही कराना शुरू किया ना कि एक जैसे 7 बजे ही लें, तो उससे उन पे बहुत फ़र्क पड़ा। कुछ लोग कहते सुबह 7 बजे उठते तो सुबह 7 बजे ले लेते, कुछ लोग 10 बजे ले लेते, कुछ लोग 12 बजे ले लेते। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए। अच्छा, दूसरा सुमलो बूटी, आंबा हल्दी और हल्दी, तीनों चीज़ें आप हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये जो है आपने अगेन 1 चुटकी नाश्ते के बाद, 1 चुटकी आपने असर के टाइम लेना है, और रात सोने से पहले कुश्ते शीरी का कहवा बना के पीजिए। इंशाल्लाह आपके थायराइड की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी, और आपको जो
हाइपोथायराइड की वजह से जो ओबीस हो रही हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। घी, तेल, चीनी, चिकनाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये नहीं लेना। अभी सर्दियां हैं, बाजरे की रोटी लें, मकई की रोटी लें। देखिए इंशाल्लाह इससे भी सूजन उतरेगी आपकी। इंशाल्लाह।